اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ باطنی علم کے حوالے سے چند جانکاری گفتگو آپ کے بیچ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جو فرمایا ہے ان کے حوالے سے آپ تک ان کی تعلیم، کچھ ایسی جانکاری، نالج جو ہمارے بیچ ہمارے علماء ہمیں آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے سرکار گوہر شاہی نے لوگوں کے بیچ یہ جانکاری شیئر کی ہے اور لوگوں کو اس سے جاگرک کیا ہے، نالج دی ہے۔ انہی کی کچھ تعلیمات میں آپ لوگوں کے بیچ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے بیچ یہ تعلیم پیش کرنے کے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد، اس تعلیم کو آپ لوگوں کے بیچ پیش کرنے کے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا۔ ایک تو تھا جوان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے صرف وہ جوان والی علم سیکھا، انہی میں سے کوئی خارج ہوا، کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم، دل والا علم سیکھا، انہی میں سے کوئی صحابی رسول اللہ کہلائے۔ اور وہ علم جنہوں نے سیکھا، ان لوگوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ ظاہری علم کتابوں میں، حدیث میں، ہر علماء کے پاس مسجد میں موجود ہے، لیکن وہ باطنی علم نہ مسجدوں میں ملتا ہے، نہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں باطنی علم کے قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں، اور باقی سب کے سب علم شریعت ہے۔ اور وہ 3 الفاظ کیا ہیں جن کو تم کہتے ہو حروف مقطعات؟ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، جیسے الف لام را، اس کو تم کیا کہتے ہو؟ حروف مقطعات۔ تم کہتے ہو حروف مقطعات ہے یہ، آگے چلو، چھوڑو اس کو، آگے چلو، آگے تو جہر ہی جہر ہے۔ حضرت سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، قرآن مجید کا صرف ایک لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اور اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ حضرت سلطان حق واہو رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور صرف اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور ہو گیا تو پھر اس میں ظاہری اور باطنی علوم خود بخود ہی آ گیا، اور وہ باطنی علم حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تصریح حدیث شریف میں ہے، لیکن باطنی علم حدیث شریف میں نہیں ہے۔ صرف اشارہ ہے، باطنی علم کا صرف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے مجھے 2 طرح کا علم حاصل ہوا۔ ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لوگوں کے بیچ آ کر انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک سے مجھے 2 طرح کا علم ملا، ایک تو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا، یہ ظاہری علم جو تم کرتے ہو، اور دوسرا جو باطنی علم ہے جو مجھے ملا، اگر وہ میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔
ये सिर्फ इशारा है, हदीस शरीफ से सिर्फ ये इशारा मिलता है। इसका मतलब ये है कि वे बातनी इल्म हदीस शरीफ में भी नहीं है, तो फिर वो बातनी इल्म कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा? वो बातनी इल्म बहुत ही नपायत है। वो बातनी इल्म हुजूर पाक के सीना मुबारक में है, और वो सीना व सीना मुस्तहिक लोगों को मिलता है। जिस तरह ज़ाहिरी इल्म के लिए सफ़ेद कागज़ चाहिए, इसी तरह बातनी इल्म के लिए सफ़ेद सीना चाहिए, पाक सीना चाहिए, दिल वाला चाहिए, कोरा सीना चाहिए बातनी इल्म के लिए। जिस तरह ज़ाहिरी इल्म सीखने के लिए सफ़ेद कागज़ चाहिए, इसी तरह बातनी इल्म हासिल करने के लिए पाक सीना चाहिए, कोरा सीना चाहिए, सफ़ेद सीना चाहिए। अब वो बातनी इल्म क्या है? लोग कहते हैं ये दरवेशों का, औलिया अल्लाह वाले जो हैं, औलिया अल्लाह का ये सिर्फ ख्याल है कि दिल अल्लाह अल्लाह करता है। लोग कहते हैं कि हमने दिल देखा है, ये सिर्फ गोश्त का लोथड़ा है, इसकी जबान ही नहीं है, ये अल्लाह अल्लाह कैसे कर सकता है? यही कहते हो ना। और हम कहते हैं ये जबान जो हमारे तुम्हारे जबान है, ये भी गोश्त का लोथड़ा है, ये अल्लाह अल्लाह कैसे करती है? ये जबान दो जबरों के दरमियान लटका हुआ है, और वो दिल तुम्हारे दो पसलियों के दरमियान लटका हुआ है। ये जान लो कि इस जबान को अल्लाह अल्लाह कराने के लिए, इस जबान को बुलवाने के लिए तुम्हारे अंदर एक मखलूक है, जिसका नाम है उस मखलूक का लतीफ़ा अख्फा, जो तुम्हारे सीने के दरमियान में है। अगर किसी की वो मखलूक ख़त्म हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं, जबान तो ठीक है लेकिन फिर भी पता नहीं ये बोलता क्यों नहीं है। इंसानों और जानवरों में इन मखलूकों का फ़र्क है, जबानों का फ़र्क नहीं है। जबान तो जानवरों को भी होते हैं, लेकिन ये मखलूक जानवर को नहीं होते हैं। अगर ये मखलूक जानवरों के अंदर भी होती तो वो भी कुछ न कुछ बोलते हैं। अगर ये मखलूक जानवरों में भी होती तो वो भी इंसानों की तरह कुछ न कुछ बोलते हैं। अब ये जो मखलूक जो हमारे तुम्हारे अंदर है, जिसको नाम लतीफ़ा इख्फा है, ये मखलूक आज़ाद है, जिसके जरिए जबान बात करती है, जबान से हम आप बोल पाते हैं। इसी तरह हमारे सीने में एक और मखलूक है जिसका नाम है लतीफ़ा कल्ब, और ये मखलूक हमारे सीने में जो ये गोश्त का लोथड़ा है, जिसको दिल कहते हैं, इसके साथ है वो। और ये मखलूक आज़ाद नहीं है। अगर कोई इस मखलूक को भी आज़ाद करा ले तो जिस तरह ये जवान हमारी अल्लाह अल्लाह करती है, बात करती है, उसी तरह वो दिल भी हमारे अंदर का अल्लाह अल्लाह करता है, वो मखलूक भी अल्लाह अल्लाह करता है। ये जवान जब अल्लाह अल्लाह करती है तो जुम्बिश आती है। इसी तरह से वो सीने में जो हमारे गोश्त का लोथड़ा है, जो हमारे सीने में मखलूक है, वो जब अल्लाह अल्लाह करती है तो हमारे सीने में जो गोश्त का लोथड़ा जो दिल है, उसको भी जुम्बिश आती है। और इधर दिल को जुम्बिश होती है तो उधर अर्श मौला को जुम्बिश होती है। जब अर्श मौला पे जुम्बिश होती है तो फरिश्ते पूछते हैं कि अल्लाह ये क्या हो रहा है? तो अल्लाह कहता है कि मेरा एक बंदा है जिस पर इनकार सजदा हुआ था, आज वो नहीं, आज उसका दिल मेरे जिक्र में मसरूफ़ है। फरिश्ते कहते हैं काश हम भी इस तरह के इंसान होते, हमारे अंदर भी इस तरह का दिल होता, हम भी तेरे अर्श मौला को हिलाते हैं। अगर हमें आपको फजीलत है फरिश्तों और जिन्नों से, सब बशर से अगर ज़्यादा अफजल हैं, फजीलत है हमें आपको, तो इस दिल की वजह से फजीलत है। क्या वजह है तुम 10-20 साल में बाजी ले जाते हो और वो हजारों साल से भी तुमसे पीछे रह जाते हैं? वो कहते हैं कि काश ये दिल हमारे अंदर भी होता तो हम इंसान को एक कदम भी आगे नहीं जाने देते हैं। वो कहते हैं अब ये तो पता चल गया कि वो जो मखलूक जिसका लतीफ़ा नाम, जिसका लतीफ़ा कल्ब है, उसका शकल फरिश्तों की तरह है, और अगर जब ये जाग उठें तब ये मर्तबा मुयस्सर होती है। लेकिन वो जागें कैसे? अगर वो जाग उठे तब ये मर्तबा मुयस्सर होती है हमें आपको, लेकिन ये जागे कैसे? अगर किसी शख्स को कहा जाए
जिसने अंडा ना देखा हो, अगर ऐसे शख्स को कहा जाए कि ये हवा में उड़ेगा और चूं चूं करेगा, तो वो शख्स क्या कहेगा कि तू गलत कहता है, न इसके पर हैं, न इसके टांगे हैं, न इसके मुंह हैं, तो ये उड़ेगा कैसे और चूं चूं करेगा कैसे? वो यही कहेगा कि तू गलत कहता है। उसका नाम बेजा है और तुम्हारे अंदर बेजाए नासूती है। उसके ऊपर 3 छिलके हैं और तुम्हारे सीने वाले बेजाए नसूती के ऊपर 1,80,000 जाले हैं। उस अंडे को जाहिरी गर्मी की जरूरत है और तुम्हारे सीने के अंदर जो है इसको अल्लाह के जरबों की जरूरत है। उस अंडे को मुर्गी चाहिए गर्मी देने के लिए और तुम्हारे सीने के अंदर जो है इसको मुर्शिद चाहिए। उस अंडे को मुर्गी चाहिए गर्मी देने के लिए, तो वो बच्चा निकलेगा, चू चू करेगा, हवा में उड़ेगा भी। और जो तुम्हारे सीने के अंदर है इसको मुर्शिद चाहिए, इसको मुर्शिद चाहिए, पीर चाहिए, उस्ताद चाहिए। और मुर्शिद कौन सा चाहिए? जो मुर्शिद कामिल हो। ये मुर्शिद नहीं जो मुर्शिद हमको खानकाह में मिल जाते हैं, यूं ही गद्दी नसीर मिल जाते हैं, ये मुर्शिद नहीं। मुर्शिद वही चाहिए जो मर्तबे विलायत पे पहुंचा हुआ हो, जो मर्द कामिल हो, जो मुर्शिद कामिल हो, वो चाहिए। उस अंडे के अंदर एक चूजा बंद है, उस अंडे के अंदर एक चूजा बंद है, दिखता नहीं है, चूजा बंद है लेकिन। और इसके अंदर जो हमारे सीने के अंदर है, इसके अंदर एक फरिश्ता बंद है, समझे? वो मुर्गी की गर्मी पाकर वो फटता है तो वो चूजा निकलता है और उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बगैर सीखे सिखाए वो चू चू करता है, समझे? और जब हमारे सीने के अंदर जो है मखलूक जो लतीफ़ाए कल्ब है, जब ये फटता है, मुर्शिद को जब हम थामते हैं, उस्ताद पकड़ते हैं, तो अल्लाह के जिक्र से जब ये फटता है तो बगैर सीखे सिखाए ये फरिश्ता अल्लाह अल्लाह करता है। उस वक्त आदमी कहता है कि मेरे अंदर कौन सी मखलूक जाग उठी जो हमारे अंदर अल्लाह अल्लाह कर रही है। फिर यहाँ से 2 तरह की तस्वीर चलती है, एक जवान वालों के लिए, एक दिल वालों के लिए। जवान वालों की तस्वीर क्या करती है? जवान वालों की तस्वीर करती है टिक, तस्वीर लेते हैं ना हाथ पे, जवान वालों की तस्वीर, एक तस्वीर एक दाना करती है टिक, जवान करती है अल्लाह। दूसरी तस्वीर करती है टिक, जवान करती है अल्लाह। ये जवान वालों की तस्वीर हो गई। तो उसका काम सिर्फ टिक टिक करना है और जवान कहती है अल्लाह अल्लाह। अब तस्वीर भी बाहर, और जो जवान से हो रही है अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, वो भी बाहर, और जो तुम्हारा ध्यान है वो भी बाहर। अब एक दफा अल्लाह कह दिए, अल्लाह अल्लाह कर दिए, घड़ी घड़ी क्यों करते हैं? जिस तरह बादल आपस में टकराती है तो बिजली बनती है, इसी तरह लफ्ज अल्लाह अल्लाह जब टकराती है तो नूर बनता है, समझ गए? अब तुम्हारा ध्यान भी बाहर, और वो जो तस्बीह पे तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो जिसकी वजह से नूर बन रहा है वो भी बाहर। ये इबादत जरूर है लेकिन ये रूहानियत नहीं, सिर्फ इबादत है, रूहानियत नहीं। ये आम लोगों की तस्बीह है, ये आम लोगों की तस्बीह है। और खास लोगों की तस्बीह क्या है? खास लोगों की तस्बीह ये है कि उसी तरह की टिक टिक तुम्हारे अंदर भी हो रही है, तुम्हारे अंदर भी हो रही है। अब वो जो हमारे अंदर जो मखलूक बेदार हो चुकी, तो आदमी उसका उस्ताद बन जाता है, आदमी उसका उस्ताद बन जाता है जब बेदार हो गई तो। और अब आदमी उसको कहता है कि तेरी तस्बीह ये टिक टिक है, इसके साथ अल्लाह अल्लाह कर। जो धड़कन है जो टिक टिक करता है उसको यही कहा जाता है कि ये धड़कन की टिक टिक जो है तेरी तस्बीह ये है, इसके साथ अल्लाह अल्लाह कर। 3 साल तक आदमी उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाता है, उस धड़कन के टिक टिक के साथ। कभी मिलती है, कभी हटती है, कभी मिलती है तो कभी हटती है। और फिर वो 3 साल के बाद इतना पुख्ता हो जाता है,
इतना जबरदस्त मिल जाता है कि फिर वो डट के सोता है और उसका दिल अल्लाह अल्लाह उसका कल्ब करता रहता है। अल्लाह के जो एक बुजुर्ग हैं जो हजरत सकी सुल्तान हक वाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुछ जागते सुनते हो और कुछ सुनते जागते हो। कुछ लोग रात भर जाग कर इबादत कर रहे हैं लेकिन वो अल्लाह की नज़र में सोए हुए में शामिल हैं। हजरत सकी सुल्तान हक वाहू रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग रात भर जाग कर इबादत कर रहे हैं लेकिन वो अल्लाह की नज़र में सोए हुए हैं, और कुछ लोग बिस्तर पे डट कर सो रहे हैं लेकिन वो रब की नज़र में जागे हुए हैं, क्योंकि उनका दिल उनका कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हमारे हुजूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम सोते हैं लेकिन हमारे दिल नहीं सोते। तो हमारे हुजूर पाक के दिल क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं, अपने रब को पुकारते हैं, रब का नाम लेते हैं। हमारे हुजूर पाक का दिल क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब ये मर्तबा तो मिल गया, जब इसको आपने बेदार कर लिया तो ये मर्तबा तो मिल गया। अब वो जो एक मखलूक को जिंदा किए, तो इस किस्म के तुम्हारे अंदर हमारे अंदर 7 मखलूक हैं। कितने मखलूक हैं? 7 मखलूक हैं तुम्हारे अंदर हमारे अंदर। हदीस शरीफ में बाकायदा इनके नाम हैं। लोग इनको लताइफ कहते हैं और दूसरे धर्म में हिंदुइज्म में इनको चक्र कहते हैं। दूसरे धर्म के लोगों में इस लताइफ को चक्र कहते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू मजहब में भी दूसरे धर्म में भी इस पर काफी जोर देने वालों ने दिया है। ये साधु सन्यासी दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस पर जोर दिया है, इसको बेदार करने का कोशिश किया है और बेदार भी किया है। हिंदुइज्म में दूसरे धर्म में इसको 7 चक्र कहते हैं। 7 चक्र, उसको एक्टिव करना हिंदुइज्म में कहते हैं। अपने अंदर के उन 7 चक्र को एक्टिव करना, बेदार करना, जागरूक करना। और बहुत से साधु संत महात्मा ने इसको बेदार भी किया है। तो हमारे धर्म में इस्लाम में हदीस शरीफ में बाकायदा इनके नाम हैं, इसको लताइफ बोलते हैं। और 9 इनके खलीफा हैं जिनको जुस्से बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे ढांचे में, इस ढांचे में 16 मखलूक हैं। 16 मखलूक हैं और वो मखलूकें हमारे नसों में चिपटी हुई है, हमारे अंदर है, जिनके अंदर जिसमें जान नहीं है, जो सोए हुए हैं, जिसको बेदार करना पड़ता है, जिसको जगाना पड़ता है। जो शख्स इन मखलूकों को बेदार करना चाहते हैं, जो शख्स इसको एक्टिव करना चाहते हैं, तो वो किबला आलम सरकार गौहर शाही से जुड़े और उनके इस तालीम को फॉलो करें और इस तालीम को अपनाएं। और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सरकार की बारगाह में जुड़ जाएं, सरकार से जुड़ जाएं, उनसे निस्बत जोड़ लें और इस बातनी तालीम को हासिल करें और अपने अंदर की इन मखलूकों को बेदार करें, एक्टिव करें, जिंदा करें और इन्हें भी अल्लाह अल्लाह में लगाएं। और ये लगाने के लिए किबला आलम सरकार गौहर शाही से बाज़ाब्ता इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इजाज़त लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जा रहा है, इस नंबर पे राब्ता करें और संपर्क करें, आपको इजाज़त दी जाएगी। और सरकार गौहर शाही से जुड़ें, आप अपने सीने के मखलूकों को बेदार करें और अपने अंदर शरीयत के साथ साथ बातनी तालीम भी हासिल करें और वो मर्तबा, वो फैज हासिल करें जो मर्तबा से हम आप महरूम हैं। सिर्फ शरीयत पे चलकर वो मर्तबे तक हम आप नहीं पहुंच पाए हैं। जो रूहानियत की तालीम है, जो रूहानियत के मर्तबे हैं, वो हासिल करें। उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस नंबर से रब्ता करें, कांटेक्ट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।